In this class, we are going to study about the cyanobacteria and also the mycoplasma. So this mycoplasma belongs to a class which is called as molecules. So this term is not given in NCERT, but mycoplasma we have to study, and this mycoplasma is at the level of genus, and it belongs to a higher category, and that is a class of the kingdom Monera, which is called as the molecules. So this is also a single category under the eubacteria that we had studied earlier. So we first have classified bacteria or the prokaryotes into two categories, that is archaebacteria and eubacteria. So this molecules is also a category under the eubacteria part, and this molecules represents a level of class. So we had studied about kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. So this molecules is at the level of the class, and this mycoplasma is at the genus level, which we have studied in our last chapter. So first let's start from the molecules. So the first thing to notice about molecules is that they don't have a cell wall, यानी कि इनके अंदर सेल वॉल पाया ही नहीं जाता है। हमने अपनी पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि बैक्टीरिया के अंदर 3 लेयर होते हैं सेल एनवेलप में। सबसे बाहर में ग्लाइकोकैलिक्स होता है, ग्लाइकोकैलिक्स के नीचे सेल वॉल और सेल वॉल के नीचे सेल मेम्ब्रेन। तो इनमें वो जो सेल वॉल का लेयर है वो प्रेजेंट ही नहीं होता है। सो दीज आर वॉललेस, दिस इज द मीनिंग ऑफ वॉललेस, कि इनके पास सेल वॉल नहीं होता है। नाउ इट्स ऑल्सो प्लियोमॉर्फिक। तो प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है कि इनके पास एक से ज्यादा टाइप्स के डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, यानी कि ये कोई स्पेसिफिक शेप के नहीं पाए जाते, इनमें बहुत सारा डिफरेंट शेप्स के पाए जाएंगे बैक्टीरिया। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ प्लियोमॉर्फिक, यानी कि यहाँ पर बहुत ही डिफरेंट शेप्स के ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर ग्राम नेगेटिव। So in our earlier classes we had studied about gram positive bacteria and gram negative. So gram negative bacteria are those which do not retain the gram stain after washing in organic solvent. So these are also gram negative, and this blue green alga is also gram negative. And it is obvious that these are prokaryotes because we are studying the kingdom Monera, and all members of the Monerans are the prokaryotes. So these are wall-less pleomorphic gram negative prokaryotes. That is the normal feature of this category, that is the molecules. Now we come to its other categories. So it was discovered by Knockard and Rox. So these were the two scientists who discovered this organism. So these are the smallest living organisms on the planet. We do not consider viruses as living organisms. So if we remove that virus, then this molecules or the mycoplasma, these are the most or the smallest living organisms on the planet. It is a very important point. These are the smallest living cells, and in NCERT we don't find the term molecules, but molecules के जगह पे हमारे NCERT में दिया है mycoplasma. Now ये जो mycoplasma है ये जीनस है। हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जीनस क्या होता है और क्लास क्या होता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स है ये क्लास के लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड दिस माइकोप्लाज्मा इज एट द जीनस लेवल। अब हम बात करते हैं इनके न्यूट्रिशन की। तो द न्यूट्रिशन इन दीज ऑर्गेनिजम्स इज आइदर सैप्रोफाइटिक और सैप्रोट्रोफिक। तो सैप्रोफाइट्स या सैप्रोट्रोफिक हम उन्हें कहते हैं जो कि डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, एंड ऑल्सो पैरासिटिक। पैरासिटिक यानी कि ये किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म पर होंगे और उसे हार्म करेंगे। सो these are the two sorts of nutrition in this. Apart from that there is something called as fermentation. तो यहाँ पर fermentation भी commonly होता है। Apart from saprophyte and parasite, तो ये जो फर्मेंटेशन है ये भी एक तरह का एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है।
जिसमें कि ये ऑर्गेनिजम्स और एनर्जी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सैप्रोफाइट्स भी हो सकते हैं, पैरासाइट्स भी हो सकते हैं, एंड दीज कैन आल्सो डू fermentation of certain starchy or carbohydrate materials. So these are the three types of nutrients in this category. Now there is one very important thing, that is mesosomes यहाँ पर absent है। तो जब हमने यू बैक्टीरिया का डायग्राम देखा था तो हमने देखा था कि यू बैक्टीरिया के अंदर सेल मेम्ब्रेन की मदद से, जो कि अंदर की ओर आ गए थे सेल मेम्ब्रेन, वहां पर बना था मीजोसोम। सो दैट मीजोसोम वाज समथिंग लाइक दिस। सपोज करते हैं कि ये हमारे बैक्टीरिया का सेल वॉल है, उसके अंदर है सेल मेम्ब्रेन, तो हमने पढ़ा था अपने पिछले क्लासेस में कि इस सेल मेम्ब्रेन के अंदर वाला जो पार्ट होता है, दिस पार्ट, दैट इज सेल मेम्ब्रेन अंदर की ओर जाता है तो जो एरिया बनता है उसे हम कहते हैं मीजोसोम। तो इस कैटेगरी में मीजोसोम्स एब्सेंट होते हैं, यानी कि ये जो मीजोसोम्स नॉर्मली स्ट्रक्चर्स होते हैं, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था कि डीएनए का रेप्लिकेशन मीजोसोम्स में ही होता है, क्योंकि मीजोसोम के बिना जो डीएनए का न्यू कॉपी बनता है या फिर जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं वो पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर मीजोसोम्स एब्सेंट है, तो आखिर डीएनए का रेप्लिकेशन कैसे होगा? तो इन बैक्टीरिया में एक स्पेशल फीचर होता है जिसे कहते हैं रेप्लिकेटिंग डिस्क। तो यहाँ पर मीजोसोम्स तो एब्सेंट है, यानी कि ये सारे स्ट्रक्चर्स यहाँ पर एब्सेंट है, लेकिन उसके बदले यहाँ कुछ और हो रहा है। तो जैसे कि हम सपोज करते हैं यहाँ पर एक हमारा नॉर्मल माइकोप्लाज्मा का सेल है, तो इसका जो डीएनए होगा उसका थोड़ा सा शेप अजीब होता है, समथिंग लाइक दिस। तो ये डीएनए नॉर्मल बैक्टीरिया का डीएनए कुछ इस तरह का होता है, लेकिन इसका डीएनए इस तरीके से सर्कुलर नहीं है, क्योंकि इस बैक्टीरिया के डीएनए में जो डीएनए के दोनों एंड्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन इस डीएनए के दोनों एंड्स जो है वो जुड़े नहीं है, यानी कि ये डीएनए एक तरह का लीनियर डीएनए है। तो इस तरह के डीएनए को लीनियर बोलेंगे, लेकिन ये टोटली स्ट्रेट नहीं है। ये क्या है? ये कॉइल्ड है। दिस इज नॉट अ सर्कल, दिस टाइप ऑफ डीएनए इज नॉट अ सर्कल, इट इज कॉइल्ड। तो यहां पर इसके डीएनए में एक रेप्लिकेटिंग डिस्क होता है, दिस इज कॉल्ड एज रेप्लिकेटिंग डिस्क। और ये इस बैक्टीरिया का डीएनए है, एंड दिस इज द सेल मेम्ब्रेन। क्योंकि इस बैक्टीरिया के अंदर तो सेल वॉल होता ही नहीं है, तो ये है सेल मेम्ब्रेन। तो यहां पर मीजोसोम्स भले ही एब्सेंट है, मीजोसोम्स आर एब्सेंट, लेकिन उसके बदले डीएनए का रेप्लिकेशन कौन करा रहा है? तो ये रेप्लिकेटिंग डिस्क। रेप्लिकेशन का मतलब होता है डीएनए का एक न्यू कॉपी का बनना। तो यहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन ये रेप्लिकेशन डिस्क कर देता है, भले ही इनके पास मीजोसोम्स नहीं है। लेकिन नॉर्मल यू बैक्टीरिया में क्या होता है? नॉर्मल यू बैक्टीरिया के अंदर जो मीजोसोम्स होते हैं वहीं पर डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाता है, लेकिन यहाँ तो मीजोसोम्स एब्सेंट है, तो उसके बदले डीएनए का जो रेप्लिकेटिंग डिस्क है उसकी वजह से रेप्लिकेशन हो जाता है। नाउ द पैरासिटिक फॉर्म्स इन प्लांट्स आर कॉल्ड एज एमएलओज, और जो एनिमल्स में होते हैं उन्हें कहते हैं पीपीएलओ। तो हमें ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म को अवॉइड करने, और बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि पीपीएलओ और माइकोप्लाज्मा में क्या डिफरेंस है। तो माइकोप्लाज्मा नॉर्मली प्लांट्स के केस में हम बात करते हैं और पीपीएलओ नॉर्मली एनिमल्स के केस में बात करते हैं। तो जो माइकोप्लाज्मा या जो मॉलिक्यूल्स प्लांट्स को डिजीज करते हैं उन्हें हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिजम्स, एमएलओ। और जो एनिमल्स को डिजीज करते हैं उन्हें कहते हैं प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म या पीपीएलओ। सो ये जो पैरासिटिक फॉर्म्स होते हैं प्लांट्स में उन्हें कहेंगे एमएलओ, दैट इज माइकोप्लाज्मा लाइक ऑर्गेनिज्म। और जो एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, पैरासिटिक है यानी कि एनिमल्स में डिजीज कॉज करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे हम? पीपीएलओ। पीपीएलओ का मतलब है प्लूरोन्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो प्लांट्स वालों को हम कह रहे हैं माइकोप्लाज्मा, एनिमल्स वाले को हम कह रहे हैं पीपीएलओ। तो ये इन दोनों में डिफरेंस है। और इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो बहुत सिंपल रिप्रोडक्शन होता है, एंड दैट इज थ्रू फिजन।
हमने जब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन पढ़ा था तो बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन में हमने फिजन देखा था। तो फिजन में क्या हो रहा था, एक सेल दो सेल के अंदर डिवाइड हो जा रहा था। सो यहाँ पर जो फिजन है इसी के थ्रू इस बैक्टीरिया में और इस मॉलिक्यूल्स में रिप्रोडक्शन होता है। So these are the features that we have to study according to our syllabus. There are also a lot of other features like the ribosomal features or the cytoplasmic features, but we don't have to study that much. So this was about the mycoplasma or PPLO or molecules. So normally regarding the questions, it is normally asked that which are the smallest living cells. So either you can get the option of MLO or PPLO or mycoplasma. So you know either of these are correct. So three other options would be there and only single will be there, that is PPLO or MLO or mycoplasma. So these are the smallest living cells known. इनके अलावा हमें और भी बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है और वो है ब्लू ग्रीन एल्गा। और इसी बैक्टीरिया की वजह से धरती के सारे ऑक्सीजन कंज्यूमिंग ऑर्गेनिजम्स आए, क्योंकि ये अर्थ के पहले लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे जिनका की ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस होता है जिनके अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि इनका नाम क्या है। तो इन्हें नॉर्मली हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया या फिर इनका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गा। तो पहले ऐसा माना जाता था कि ये जो बैक्टीरिया है जिन्हें हम आज बैक्टीरिया कहते हैं, पहले इन्हें प्लांट की तरह ट्रीट किया जाता था, तो तभी इनको कहते हैं एल्गा। तो एल्गा प्लांट का एक कैटेगरी है। तो यहाँ पर जो एल्गा है पुराने ज़माने में इस बैक्टीरिया को हम प्लांट के कैटेगरी में रखते थे क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस भी होता था। लेकिन ये जो टर्म है साइनोबैक्टीरिया ये बाद में दिया गया क्योंकि इनके जो सेल्स होते हैं वो प्रोकैरियोट्स होते हैं, मतलब इनके पास एक प्रॉपर न्यूक्लियस नहीं होगा, न्यूक्लियोइड होगा। तो न्यूक्लियोइड है तो इसे हम प्लांट नहीं कह सकते, इसे हम कहेंगे प्रोकैरियोट। सो इसी वजह से इसे रखा गया बैक्टीरिया के कैटेगरी में, ना कि प्लांट के कैटेगरी में। और ये जो टर्म है ना साइनोबैक्टीरिया, ये साइनोबैक्टीरिया टर्म बाद में आया। जो पुराना टर्म था दैट वाज ब्लू ग्रीन एल्गा एंड दिस ये जो टर्म है इट वाज गिवन बाय द ICBAC-N। तो हमने अपनी पिछली चैप्टर में पढ़ा था कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के नोमेनक्लेचर में अलग अलग बॉडीज होते हैं या प्रिंसिपल्स होते हैं। तो एनिमल्स के नोमेनक्लेचर में ICZN हमने पढ़ा था, इंटरनेशनल कोड ऑफ ज़ूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। प्लांट्स के केस में हमने ICBN पढ़ा था, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटैनिकल नोमेनक्लेचर। उसी तरह बैक्टीरिया के नोमेनक्लेचर के लिए है ICBAC-N, दैट इज इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो दिस टर्म वाज गिवन बाय ICBAC-N। तो हमने अपनी पिछले चैप्टर में देखा था कि इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल कोड ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। सो ये इस टर्म को दिया था, अदरवाइज पुराना वर्ड या पुराना टर्मिनोलॉजी था ब्लू ग्रीन एल्गा। नाउ ये तो होते हैं ग्राम नेगेटिव, तो हमने ऊपर में देखा था कि वो भी ग्राम नेगेटिव होते हैं, यानी कि ये ग्राम स्टेन को रिटेन नहीं करेंगे आफ्टर बीइंग वॉश्ड इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड अपार्ट फ्रॉम दैट दीज आर प्रोकैरियोट्स। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है फोटो ऑटोट्रोफिक। तो फोटो ऑटोट्रोफिक का मतलब है कि ये लाइट में अपना फूड सिंथेसिस करेंगे। हमने अपने पिछली क्लासेस में देखा था कि कीमो ऑटोट्रोफिक थे, यानी कि वो केमिकल्स की मदद से अपना फूड सिंथेसाइज कर रहे थे, लेकिन ये फोटो ऑटोट्रोफिक है। फोटो मतलब लाइट के प्रेजेंस में ये करते हैं। उसके अलावा इनकी फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही बड़ी खासियत है, दैट इज ऑक्सीजन का रिलीज। सो दीज वर द फर्स्ट लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू परफॉर्म ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। तो अर्थ पे सबसे पहले ऑक्सीजन किसी ने रिलीज किया तो यही साइनोबैक्टीरिया थे। अगर ये ना होते तो आज अर्थ पे ऐसे ऑर्गेनिजम्स नहीं होते, इंसान भी नहीं होते जो कि ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। तो सारे एनिमल्स ऑलमोस्ट ऑक्सीजन को कंज्यूम करते हैं। और ये जो साइनोबैक्टीरिया थे ये अर्थ पे लगभग
3 बिलियन ईयर्स पहले आए थे अप्रोक्सीमेटली, और इवन मे बी इससे भी ज्यादा पुराने फॉसिल्स मिले हैं साइनोबैक्टीरिया के। तो आप सोच सकते हो कि ये कितने पुराने ऑर्गेनिज्म है। एंड दीज वर द फर्स्ट टू रिलीज ऑक्सीजन। इसके पहले जितने भी फोटोसिंथेसिस या कोई और सिंथेसिस हो रहा था, कीमोसिंथेसिस, उसमें ऑक्सीजन का रिलीज नहीं हो रहा था, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का रिलीज होता है। अब इनका जो अकरेंस है वो ऑलमोस्ट हर जगह है। ये डेजर्ट में भी पाए जाएंगे, वाटर में भी पाए जाएंगे, लैंड पे भी पाए जाएंगे, मरीन वाटर, फ्रेश वाटर, ऑलमोस्ट हर जगह ये पाए जाते हैं। आइस पे भी ये पाए जा सकते हैं। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन दे अकर इन ऑलमोस्ट ऑल टाइप ऑफ हैबिटेट, यानी कि ये हर तरह के हैबिटेट में ये रह सकते हैं। दिस इज देयर फीचर। अब इनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकल रोल है। आप लोग 12th क्लास में इकोलॉजी पढ़ने वाले हो, वहां पर इसका रोल फिर से आएगा। और इसका रोल क्या पढ़ना है वहां पर? इसका ये रोल हमें पढ़ना है कि कोई भी बैरन एरिया जहां पे कोई भी लाइफ नहीं है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं बंजर जमीन या फिर बंजर एरिया, तो वैसे एरिया में कोई ऑर्गेनिज्म सबसे पहले जाता है तो वो यही होता है। दैट इज किसी भी बैरन एरिया में सबसे पहले यही साइनोबैक्टीरिया किसी भी एरिया को कॉलोनाइज करते हैं। अगर वो बैरन हो तो किसी भी एरिया में जहां पर लाइफ नहीं है तो वहां पर सबसे पहले कौन डेवलप होते हैं? वहां पर साइनोबैक्टीरिया होते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के जो स्पोर्स होते हैं वो हमेशा एयर में रहते हैं, तो एयर के थ्रू साइनोबैक्टीरिया के स्पोर्स ट्रांसपोर्ट होते रहते हैं। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए साइनोबैक्टीरिया बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन रिलीज करते हैं और किसी भी एरिया में ये पाए जाते हैं। अब आपने एक टर्म पढ़ा होगा लाइकेंस के बारे में। तो लाइकेंस एक तरह का एसोसिएशन होता है फंजाई और बैक्टीरिया के बीच में। तो बेसिकली यहाँ पर फंजाई, लाइकेंस में फंजाई और ब्लू ग्रीन एल्गा का एक एसोसिएशन होता है। तो इस एसोसिएशन में दोनों को बेनिफिट मिलता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक मतलब दोनों को बेनिफिट यहाँ पर मिल रहा है। तो कहीं पर सिम्बायोटिक एसोसिएशन हो बायो में तो इसका मतलब यही है कि वहां पर दोनों ऑर्गेनिजम्स को बेनिफिट हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गा है सिर्फ और सिर्फ फंजाई के साथ ही एसोसिएशन बनाएगा, ये ह्यूमंस के साथ भी एसोसिएशन बनाता है। हमारे बॉडी के अंदर भी साइनोबैक्टीरिया पाए जा सकते हैं या फिर कहीं अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के साथ ये एसोसिएटेड होते हैं। कुछ और एनिमल्स के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं या कोई और प्रोटिस्ट के साथ एसोसिएटेड हो सकते हैं। तो बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के साथ ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये एसोसिएट हो सकते हैं, यानी कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना सकते हैं। So this was about a few points about the blue green alga. Now we are going to see a few more points about blue green alga। और blue green alga के different जो types होते हैं, colonial, filamentous या unicellular, जिसे हम solitary भी कह सकते हैं, और इसके बारे में कुछ और फीचर्स अब हम पढ़ने वाले हैं। Now we will study about a few more points in this cyanobacteria part। So ये जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं ये जनरली 3 फॉर्म्स में पाए जाते हैं। सबसे पहला है यूनिसेलुलर। सो एज यू कैन सी फ्रॉम द नेम दैट इज यूनिसेलुलर। तो यहाँ पर एक ही सेल का साइनोबैक्टीरिया होगा, दैट इज वहां पर उनका जो बॉडी है वो सिर्फ एक ही सेल का बना होगा। एग्जाम्पल है सिनेकोकॉकस और सिनेकोसिस्टिस, दैट इज दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स ऑफ यूनिसेलुलर साइनोबैक्टीरिया। यहाँ पर इनके बॉडी में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेल होंगे। लेकिन अब दूसरा है कॉलोनियल, यानी कि आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हो कि नाम से ही कॉलोनी वर्ड में आ रहा है यहाँ पर। तो कॉलोनियल उसे कहते हैं जो कि एक कॉलोनी के टाइप में रहता है। तो ऑब्वियसली एक कॉलोनी में तो एक से ज्यादा बैक्टीरिया होंगे, यानी कि एक से ज्यादा यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया होंगे। तो उस पूरे कॉलोनी में जनरली ये ऑब्जर्व किया जाता है कि एक कॉमन म्यूसिलेजिनस शीट होता है, उसी के अंदर वो सारे ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया साथ में रहते हैं एक एसोसिएशन में, और साथ में एक न्यू इंडिविजुअल की तरह फॉर्म करते हैं स्ट्रक्चर ये। यानी कि जो भी ये कॉलोनी में छोटे छोटे साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं वो सब एक एसोसिएशन फॉर्म करते हैं और जनरली वो एक इंडिविजुअल की तरह बिहेव करता है। तो इस तरह के साइनोबैक्टीरिया को हम कहते हैं कॉलोनियल साइनोबैक्टीरिया। अब इस पूरे कॉलोनी के बाहर में जनरली एक म्यूसिलेजिनस शीथ पाया जाता है। सो दिस इज अबाउट द कॉलोनियल टाइप ऑफ बैक्टीरिया, दैट इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिव टुगेदर। यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं
टू फॉर्म एन इंडिविजुअल, यानी कि इतने सारे बड़े बड़े छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म साथ में मिलके एक इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया के कॉलोनीज है ना, उनके चारों तरफ एक कॉमन म्यूसिलेजिनस शीथ होता है। एग्जाम्पल है मेरिस्मोपीडिया। सो दिस इज अबाउट द कॉलोनियल फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अब तीसरा कैटेगरी है वो है फिलामेंटस। तो फिलामेंटस बैक्टीरिया कुछ इस तरह से होते हैं। तो इनमें एक सीरीज, एक लाइन में सेल्स जुड़े हुए होते हैं और ये मल्टी सेल्यूलर फॉर्म्स होते हैं, यानी कि यहाँ पर जो बैक्टीरिया है दैट इज साइनोबैक्टीरिया है, ये मल्टी सेल्यूलर साइनोबैक्टीरिया है। जबकि पहला कैटेगरी में था यूनिसेल्यूलर और कॉलोनियल में क्या था, बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया साथ में रह रहे थे और वो एक इंडिविजुअल को फॉर्म कर रहे थे। लेकिन ये जो तीसरा है फिलामेंटस, वो कुछ इस तरह का रहता है, यहाँ पर सेल्स एक दूसरे से एक सीरीज में, एक चेन की तरह जुड़े रहते हैं। तो इस तरह के बैक्टीरिया को हम कहते हैं फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया। अब यहाँ पर एक स्पेशल तरह का सेल होता है, कहीं कहीं पर बीच में बड़ा सा, उस बड़े से सेल को एक स्पेसिफिक नाम दिया जाता है, दैट इज कॉल्ड एज हेटेरोसिस्टस। तो हेटेरोसिस्ट जो होते हैं ना, वो हेटेरोसिस्ट ऐसे सेल्स होते हैं जिनमें कि जो फोटोसिंथेसिस वाला पिगमेंट होता है वो नहीं होता है। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि ये जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, ये अपना फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और उससे ऑक्सीजन भी रिलीज करेंगे। तो ये जो बाकी के छोटे छोटे सेल हैं, यहां से तो फोटोसिंथेसिस होगा, लेकिन ये जो बड़ा वाला सेल है दैट इज अ हेटेरोसिस्ट। तो हेटेरोसिस्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। लेकिन हेटेरोसिस्ट के बारे में एक और फीचर ये है कि इनका वॉल काफी थिक होता है। तो फिलामेंटस फॉर्म में जनरली हेटेरोसिस्ट पाए जाते हैं, यूनिसेल्युलर या कॉलोनियल वाले टाइप्स में जनरली नहीं पाए जाते हैं हेटेरोसिस्ट। तो ये बड़ा वाला थिक वॉल वाला सेल है हेटेरोसिस्ट। अब इसके अंदर फोटोसिंथेसिस तो नहीं होगा, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है जिसे हम कहते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो यहां पर हेटेरोसिस्ट के अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है। अब बाकी सेल्स में तो यहां पे हमने देखा था कि ऑक्सीजन रिलीज होता है, क्योंकि साइनोबैक्टीरिया ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो नाइट्रोजनस फिक्सेशन के लिए जो सबसे पहला कंडीशन है वो है एनेरोबिक, यानी कि जो बैक्टीरिया है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन तभी कर सकते हैं जब वहां पर एनेरोबिक कंडीशंस हो। लेकिन बाकी सेल्स तो ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं, यानी कि वहां पे तो एरोबिक कंडीशन हो गया। इसी के लिए, इसी से प्रोटेक्ट होने के लिए यहां पर थिक वॉल होते हैं। तो भले ही इस साइड से ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, यहां से भी ऑक्सीजन रिलीज हो रहा है, लेकिन इस सेल के अंदर ऑक्सीजन क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि वॉल बहुत थिक है, ये ऑलमोस्ट इम्परमेबल होता है और इसके अंदर वो सारे एंजाइम्स होते हैं जिससे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन हो सकता है। लेकिन हेटेरोसिस्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। बाहर में भले ही ऑक्सीजन है, एरोबिक कंडीशन है, लेकिन इसके अंदर एनेरोबिक होगा, क्योंकि इतना थिक वॉल के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा सकता है। सो दैट इज व्हाई दिस हेटेरोसिस्ट इज एबल टू perform nitrogen fixation but it does not do photosynthesis. So देखते हैं उसके बारे में। फिलामेंटस में these are multicellular forms, cells are placed end to end यानी कि एक दूसरे के एंड पर प्लेस्ड है। उसका बहुत कॉमन सा एग्जांपल है, हमारी एनसीईआरटी में भी इसका डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज नॉस्टॉक। अब बात करते हैं इसके हेटेरोसिस्ट के बारे में। तो फिलामेंटस फॉर्म्स ऑफन हैव लार्ज, तो हम हेटेरोसिस्ट को देख सकते हैं, ये लार्ज साइज का सेल है और पेल कलर्ड। पेल कलर कहने का मतलब है कि बाकी सेल से ये लाइट कलर का होता है। अगर ये सेल्स ग्रीनिश है या ब्लूइश है तो ये लाइट कलर का होता है, यानी कि इसमें बहुत ज्यादा डीप कलरेशन नहीं होता है। एंड दीज सेल्स आर कॉल्ड एज हेटेरोसिस्ट। देयर वॉल इज 3 लेयर्ड, इनका जो वॉल है 3 लेयर मोटा है, लेकिन बाकियों का वॉल तो 1 लेयर का है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका वॉल काफी थिक होता है। एंड इम्परमिएबल टू ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन अंदर नहीं जा सकता है। दे हैव रिड्यूसिंग कंडीशन, रिड्यूसिंग कंडीशन मतलब यहाँ पे रिडक्शन होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि हम चैप्टर 11 और 12 में पढ़ने वाले हैं। तो वहां पर जो हम पढ़ेंगे वहां पर देखेंगे कि नाइट्रोजन का रिडक्शन होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के अंदर। तो उसके लिए एनेरोबिक कंडीशन चाहिए, यानी कि रिड्यूसिंग कंडीशंस यहां पर चाहिए।
तो वहां पर जो हमारा हेटेरोसिस सेल है इसके अंदर वो एंजाइम्स होते हैं और वो कंडीशंस होते हैं जहां पे नाइट्रोजन का रिडक्शन किया जा सके। तो उस नाइट्रोजन के फिक्सेशन में नाइट्रोजन के रिडक्शन का होना जरूरी होता है। सो नाइट्रोजन फिक्सेशन में अल्टीमेटली ये हेल्प करता है, या नाइट्रोजन के रिडक्शन में ये सेल हमारा हेल्प करता है। अब इनके पास फोटोसिंथेसिस हो रहा है, तो हमें पता है कि प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस तभी होता है जब लीव्स में क्लोरोफिल हो। तो क्लोरोफिल सनलाइट को एब्जॉर्ब करके फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पर जो क्लोरोफिल का होना जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, तो फोटोसिंथेसिस के लिए बैक्टीरिया के पास है क्लोरोफिल्स। उसके अलावा बैक्टीरिया के पास कैरोटिनॉइड्स भी होते हैं। कैरोटिनॉइड्स ग्रीन कलर के नहीं होते, ये ऑरेंज और येलो कलर के होते हैं जनरली। और फिर है फाइकोबिलेंस। तो ये सारे पिगमेंट्स ऐसे हैं जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस के लिए एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, उस एनर्जी को जो इन्होंने सनलाइट से एब्जॉर्ब किया है। तो ये इन फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स का फंक्शन है। अब क्लोरोफिल ए है, फिर बहुत अलग अलग तरह के क्लोरोफिल होते हैं, जैसे कि बी, सी, ऐसे 9-10 तरह के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। तो प्लांट्स में हम लोग देखेंगे कि क्लोरोफिल बी भी पाया जाता है, लेकिन बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है। यहाँ पर क्लोरोफिल बी नहीं पाया जा रहा है, लेकिन प्लांट्स में हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोफिल ए भी है, बी भी है, और भी बहुत तरह के क्लोरोफिल प्लांट्स में पाए जाते हैं। नाउ यहाँ पर फोटोसिंथेसिस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर, यानी कि वहां पर वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस में हाइड्रोजन डोनर जो है वो है वाटर। तो सबसे पहले हम फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन देख लेते हैं। CO2 प्लस H2O C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O। तो ये हमारे फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है। तो हम देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड से क्या बना है, ग्लूकोज। तो यहां पर इस ग्लूकोज में जो 12 हाइड्रोजन है वो कहां से आए हैं, तो वो वाटर वाले हाइड्रोजन, ये जो हाइड्रोजन है यही गया है इसके अंदर। तो ये हाइड्रोजन जो वाटर से आ रहा है, इसीलिए कहा जा रहा है कि यहाँ पे वाटर हाइड्रोजन डोनर होता है। तो नॉर्मली H2O इज द हाइड्रोजन डोनर इन ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस, और वाटर का जो ऑक्सीजन है वो कहाँ निकल जाता है, उस फॉर्म में जो कि हमें प्लांट से ऑक्सीजन मिलता है। तो इसी वाटर का वो ऑक्सीजन होता है, और वाटर का हाइड्रोजन कहाँ गया, वो चला गया हमारे कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज के फॉर्मेशन में। सो दिस वाज द H2O is the hydrogen donor in oxygenic photosynthesis. अब जो साइनोबैक्टीरिया का कलर होता है वो सबसे कॉमन साइनोबैक्टीरिया में ग्रीनिश और ब्लूइश कलर पाया जाता है। दैट इज नॉर्मली साइनोबैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन, यानी कि ब्लूइश या ग्रीनिश कलर यहाँ पे मेनली पाया जाता है। लेकिन बहुत अलग अलग कलर भी मिलेंगे, जैसे कि पर्पल कलर मिल सकता है, ग्रीन कलर मिल सकता है, या फिर ब्राउन कलर मिल सकता है, रेड कलर मिल सकता है। तो इसमें अलग अलग तरह के कलर्स पाए जाते हैं। उनका कारण 2 स्पेसिफिक केमिकल होता है, एक को बोलते हैं फाइकोएरिथ्रिन और दूसरे को बोलते हैं फाइकोसाइनिन। तो इन केमिकल्स की वजह से जनरली ये कलर पाए जाते हैं। तो ये जो डिफरेंट कलर्स हैं मेनली 2 तरह के केमिकल्स की वजह से हैं। तो साइनोबैक्टीरिया के जो अलग अलग कलर हैं, वायलेट है, रेडिश है, ग्रीन है, पर्पल है, ब्राउन है, तो उसमें इन दोनों का बहुत बड़ा रोल होता है। यानी कि फाइकोसाइनिन जो कि ब्लू कलर का होता है और फाइकोएरिथ्रिन जो कि रेड कलर का होता है, इन दोनों केमिकल्स की वजह से साइनोबैक्टीरिया में अलग अलग कलर कॉम्बिनेशंस होते हैं। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, वो ये है कि जो वाटर के साइनोबैक्टीरिया होते हैं, यानी कि ये लैंड पे भी रहते हैं, सॉइल में भी रहते हैं, वाटर के अंदर भी रहते हैं। तो वाटर के सरफेस पे जो साइनोबैक्टीरिया होते हैं वो नॉर्मली ब्लूइश ग्रीनिश कलर के होते हैं, लेकिन जब हम वाटर के नीचे जाते हैं यानी कि डीप वाटर में देखेंगे तो रेड कलर के साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। इसका रीजन ये है
कि जो रेड कलर के साइनोबैक्टीरिया है वो ब्लू लाइट को जनरली एब्जॉर्ब करते हैं और ब्लू लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। आपने पढ़ा होगा कि लाइट का वेवलेंथ उसका कलर डिटरमाइन करता है। तो अगर हम स्पेक्ट्रम की बात करें विबग्योर, तो सबसे लास्ट में आता है रेड। रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा है और सबसे कम है वायलेट और इंडिगो का। तो वायलेट और इंडिगो का जनरली यूज नहीं होता है फोटोसिंथेसिस में, ब्लू कलर का यूज किया जाता है। तो डीप वाटर में अगर हम बात करें तो ब्लू लाइट ज्यादा नीचे तक पेनेट्रेट करता है क्योंकि ब्लू लाइट का वेवलेंथ सबसे कम होता है। यानी कि इन पांचों कलर में ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड की बात करें तो ब्लू लाइट का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है। तो जिस लाइट का वेवलेंथ जितना छोटा होगा वो लाइट उतना ही ज्यादा पेनेट्रेट करेगा। तो वाटर के सरफेस के काफी नीचे तक ब्लू लाइट जाता है, इसीलिए डीप वाटर में रेड वाले ब्लू ग्रीन एल्गा या साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं, क्योंकि वो ब्लू नहीं हो सकते क्योंकि ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रेड लाइट को वो रिफ्लेक्ट करते हैं। इसीलिए जो डीप वाटर के साइनोबैक्टीरिया हैं वो रेड कलर के अपीयर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ब्लू लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब एक छोटा सा फिनोमिनन हमें पढ़ना है, दैट इज गाइडुको फिनोमिनन, या फिर इन्हें हम कहते हैं क्रोमैटिक अडेप्टेशन। यानी कि बैक्टीरिया अलग अलग लाइट के कलर में अपना कलर चेंज कर सकता है। जैसे कि हम लोग किसी भी तरह के लाइट में हो, हमारा जो स्किन कलर है वो तो वही रहेगा, लेकिन बैक्टीरिया अपना कलर चेंज कर सकता है। आप जैसा लाइट उस पे दोगे उसके अकॉर्डिंग वो अपना चेंज कर लेगा, और इस लाइट के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करने का एबिलिटी दैट इज कॉल्ड एज गाइडुको फिनोमिनन और क्रोमैटिक अडेप्टेशन। अब ये बहुत कॉमन इसका एक एग्जांपल है कि अगर इस बैक्टीरिया को रेड कलर में रखेंगे लाइट, अगर रेड कलर का लाइट देंगे तो ये ग्रीन कलर का हो जाएगा, अगर ग्रीन कलर का लाइट देंगे तो रेड कलर का हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज क्रोमैटिक अडेप्टेशन। सो इट इज द चेंज इन पिगमेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया विद चेंज इन कलर ऑफ लाइट। यानी कि बैक्टीरिया अपना पिगमेंटेशन यानी कि अपना कलर चेंज कर लेगा लाइट के रिस्पॉन्स में। तो अगर हम रेड लाइट दें, रेड, तो वो ग्रीन हो जाएगा, या फिर ग्रीन लाइट दें तो वो रेड हो जाएगा। तो ये बैक्टीरिया अपना कलर चेंज कर सकता है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द साइनोबैक्टीरिया। और साइनोबैक्टीरिया में जो हमारा नाइट्रोजन फिक्सेशन वाला पार्ट है दैट इज हेटेरोसिस्ट वाला, ये हम फिर से प्लांट्स के कैटेगरी में पढ़ने वाले, क्योंकि वहां पर हमें नाइट्रोजन फिक्सेशन को पूरे इक्वेशंस के साथ, पूरे प्रोसेसेस के साथ और स्टेप्स के साथ डिटेल में पढ़ना है। सो नाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस साइनोबैक्टीरिया सेक्शन एंड आल्सो द बैक्टीरिया एज अ होल। सो आफ्टर दिस वी आर गोइंग टू स्टार्ट द किंगडम प्रोटिस्टा।